नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। खास बात इंडिया स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल। आइए खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। आपको देश दुनिया और आपके शहर और आपके इलाके का हाल बताते हैं। हमारे साथ बने रहिए, देखिए आपके शहर, आपके इलाके का और देश दुनिया का हाल। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आफरीन। आप जुड़े हैं खास बात इंडिया से। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 93 नंबर वार्ड की तरफ चलते हैं। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 93 अंतर्गत रानीगंज के हल्दर बांध इलाके में सोमवार को अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। यहाँ एक तालाब है, जिससे आग कैसे लगी इस पर लोगों में हैरानी है। आग लगने के साथ ही दमकल को खबर दी गई, जिससे आग पर काबू पा लिया गया। इस संदर्भ में 93 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद चंद्रेश्वर मंडल ने कहा कि यहाँ बेतरतीबी से पड़े कागजों में सिगरेट फेंकने से ये आग लगी थी। उन्होंने कहा कि आग की लपेट ऊपर तक गई थी। हमारे संवाददाता ने यहाँ पर स्थित एक कैफे के मालिक अपूर्व मंडल से बात की। उन्होंने साफ कहा कि इस आग का उनके कैफे से कोई लेना देना नहीं। दरअसल इस कैफे के खिलाफ आरोप लगाया जा रहा था कि इस कैफे के स्टाफ द्वारा फेंके गए कूड़े के कचड़े के ढेर में ही आग लगी है। हालांकि अपूर्व मंडल ने इन आरोपों को सरे से खारिज कर दिया। वहीं दमकल अधिकारी अजय मंडल ने कहा कि 10 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि वो आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं कर पाए। কিছুক্ষণ আগে দেখা গেছিল এই পুকুর হালদারবান্ধ পুকুরের ওখানে মানে আপনার ক্যাফের পেছনে আগুন লেগেছিল। বিষয়টা কিভাবে হয়েছিল? কীভাবে লেগেছিল বুঝতে পারিনি। ওটা তো পুরো স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা, পুকুর আছে ওখানে, মানে আগুন লাগার তো এত সম্ভাবনা নেই। ওখানে দেখা গেছে আপনারই ক্যাফেতে ইউজ করা কাগজপত্র, কভার এসব পড়ে আছে ওখানে। তো ওখান থেকে আগুনটা লেগেছে কি সেটা বলতে পারছি না, আমি তো দেখিনি আগুনটা লাগার সমস্যা। কিছু কিছু লোকের বক্তব্য এখানে কাগজ ফেলেছিল, কাগজ থেকে আগুনের উৎপত্তি হয়েছে। আগুনটা পরে সেটা আমি জানি না, কি ছিল না জানি। আমি ওখানে ফেলিও না, কি জন্য। তো ওখানে কাগজ, কভার, পেপারের কভার সব তো পড়ে রয়েছে। ওগুলো তো আমাদের ক্যামেরায় আছে। কি বলছেন এই বিষয়ে? এ বিষয়ে আমি জানি না। তো ওগুলো কার, কোথার থেকে এলো? এখানেই তো ইউজ হয় কাগজগুলো। ইউজ তো অনেক জায়গাতে হয়, এখানে ক্যাফের পেছনে আগুন লেগেছে, আর কাগজ তো এখানেরই না হবে। এবার কে ফেলেছে কী করে জানবো? এ বিষয়ে তো বলতে পারবো না। আপনাদের যদি কোনো স্টাফ ফেলবে? আমরা কোনো স্টাফ ফেলি না, আমরা কোনো কিছু ফেলি না। ওখানে কি নাম আপনার? আমার নাম অপূর্ব মণ্ডল। आज कुल्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सोदपुर एरिया में हेल्थ सेंटर बिल्डिंग का पूर्ण निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के मेंबर मीर हाशिम द्वारा फीता काटकर किया गया। मीर हाशिम ने बताया कि आसनसोल में जितने भी हेल्थ सेंटर है, सबका पूर्ण निर्माण किया जा रहा है। उसमें और अधिक व्यवस्था की गई है, जिससे मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और बच्चों के सभी टीका यहीं पर उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय आज के माटी नालार उद्बोधन उपलक्षे 516टा हेल्थ सेंटर और 1722 सब सेंटर जो अपग्रेडेशन तार मध्य आमादेर এই সোদপুর কুমারডিহা এই দুটি হেলথ সেন্টারে আমরা আপগ্রেডেশনের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। অর্থাৎ এটা যেটা আগেকার আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের যে কনসেপ্টে কাজ চলছিল তার থেকে আপগ্রেড হয়ে এটা এখন কমিউনিটি হেলথ সেন্টার বা সিএসসি বা মানে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র অর্থাৎ হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারে আপগ্রেডেড হলো, যার মাধ্যম দিয়ে সমস্ত মেন হচ্ছে কি আমাদের রুটিন ইমিউনাইজেশন থেকে শুরু করে ম্যাটারনাল এবং চাইল্ড হেলথ কেয়ার থেকে শুরু করে তাদের প্রাথমিক সমস্ত চিকিৎসা এবং তার আমরা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ অর্থাৎ হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার এবং থাইরয়েড ইত্যাদি রোগগুলোর চিকিৎসা এখানে হবে। এবং এদেরকে সমস্ত কমিউনিটি থেকে 3টি ধাপে সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি করে প্রথম ধাপে এই চিকিৎসা করে, তারপর দ্বিতীয় ধাপে তাদের সমস্ত প্রকার টেস্ট করা এবং তারপর তৃতীয় ধাপে তাদের সমস্ত প্রকার মানে ইনডোর বা হসপিটালাইজেশনের সময় যে চিকিৎসার অন্তর্ভুক্তি এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে তার ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে। তা সেই জন্য এই আজকের দিনটি বিশেষভাবে আমরা এই আপগ্রেডেশন অর্থাৎ আমরা যেটা আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার ছিলাম সেটা থেকে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের এই রূপায়ণের জন্য আমরা ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সরকারের তরফ থেকে আমাদের এই অন্তর্ভুক্তিকরণের আমরা স্বীকৃতির জন্য আমরা বিশেষভাবে আনন্দিত।
স্যার আপনার নাম কি? আমি ডাক্তার दीपक गांगुली, स्वास्थ्य अधिकारी, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निगम। आज यहाँ पे क्या हुआ है? देखिए, ये सोदपुर हेल्थ सेंटर है। इसी तरह कुल्टी में 2 हेल्थ सेंटर है, कुमारडिया हेल्थ सेंटर और सोदपुर हेल्थ सेंटर। ये ममता बनर्जी का अनुप्रेरणा से यहाँ का अपग्रेडेशन हुआ है, जिसमें आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए हमारे बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के जनाब चेयरमैन पर्सन जनाब अमरनाथ चटर्जी साहब और कमिश्नर नितिन संघानिया की जरिए हम लोग यहाँ पे आज इसका ओपनिंग किए हैं। और ममता बनर्जी का बहुत ही शुक्रगुजार है कि इसी तरह पूरा मगरबी बंगाल में जितना भी हेल्थ सेंटर था सबका अपग्रेडेशन हुआ है और यहाँ भी हुआ है। यहाँ पर ब्लड टेस्ट होगा और जो हमारी महिलाएं हैं वो जो बच्चों को वैक्सीन वगैरह दिया जाता है, सभी काम होते हैं। यहाँ के टोटल स्टाफ हैं, हमारे हेल्थ डॉक्टर गांगुली साहब हैं, उनके अलावा डॉक्टर पीके दास साहब हैं, सभी हैं। और ये जो काम हुआ बहुत ही बेहतर हुआ है, इसके लिए ममता बनर्जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम? मीर हासिम, मेयर मेंबर ऑफ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। केंद्र राज्य मंत्री व आसनसोल के भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो ने सीतारामपुर स्टेशन के बाहर शौचालय एवं प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने जय श्री राम बोलकर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म निरपेक्ष देश में सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीतारामपुर स्टेशन परिसर में 10 लाख रुपए की लागत से टॉयलेट कॉम्प्लेक्स एवं 25 लाख की लागत से यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण किया गया है। इसके लिए मंडल रेल प्रबंधक सुमित सरकार को बधाई दी। অমরবাবু রাজনৈতিকভাবে অমরবাবু অমর হন, এটাই চাইব। কিন্তু এই ধরনের অনুষ্ঠানে মানুষের কাছে থাকতে না পারলে নামে অমর লিখে কোনো লাভ নেই। মানুষের যখন ভালো কাজ হবে তখন রাজনীতি ভুলে সেই মঞ্চে থাকতে হবে, তখন সেটা করতে পারলে তবেই মানুষ তাকে আপনাকে রাজনীতিক হিসেবে অমর করবে। তো খালি নামের মধ্যে কিছু উজ্জ্বল নাম হলো অথচ আমার কাজগুলো উজ্জ্বল হলো না, সব কিছুতে রাজনীতির বাধা এলো। নাম হলো অমর অথচ আমি মানুষের কাছে এলাম না, তাহলে অমরও হওয়া হবে না, উজ্জ্বলও হবে না। তো এটা আমি মনের দুঃখেই বলছি, কারণ বিভিন্ন মানুষের কাজেতে এদের অনুপস্থিতি বড্ড উজ্জ্বল হয়ে এবং এই না আসাটা কিন্তু মানুষের মনে অমর দুঃস্বপ্ন হিসেবেই থেকে যায়। তো যাই হোক, আপনারা এসছেন, যারা এসছেন তাদের সবাইকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাবো এবং আরেকবার রেলওয়ে কর্তৃপক্ষদের ধন্যবাদ জানিয়ে কথা বলে যে কোনো ভাষা বলে আমি আর্জন সেটাই বা দিদিও সেদিন যদি জয় শ্রীরাম নমস্কার করে বলে নিজের মুখ্যমন্ত্রী সুলভ আচরণ করে যদি ভাষণটা দিতেন তাহলে নেতাজিকে সম্মানটা বেশি জানানো হতো না। আমার এটাই মনে হয়, আমি আগেও বলেছি, লিখে হচ্ছে কাগজে, আপনাদের সামনে আরেকবার মনে করি। जितेंद्र तिवारी बीजेपी से आज तक सुने होते आपने आपको तो सब कुछ मालूम है। अभी हमको काहे क्वेश्चन करते दीदी के साथ है, उन्होंने सच्चाई बोल दिया कि दीदी के कारण कोई उन्नयन नहीं हो पाया, फिराद हाकिम ने कोई भी पैसा नहीं भेजा, दल के साथ दल ने जो अत्याचार किया बीजेपी के लड़कों के ऊपर, बीजेपी समर्थकों के ऊपर, उसके लिए वो खेद जताया। उन्होंने बोला कि हाँ बहुत गलत काम हमने किया है। उन्होंने ये साहस दिखाई, इसलिए मैंने कोई भी उसके बाद कोई भी कटु शब्द मैंने कभी उपयोग करता हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने आसनसोल की जनता को सच्चाई बता दिया, कितने करोड़ों रुपया अलग अलग प्रोजेक्ट में केंद्रीय सरकार ने नहीं दिया, ये सारी बातें उन्होंने बता दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सच्चाई उनके मुँह से आया तो मैं जो सच्चाई बोलता रहा हूँ कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट नहीं होने थे, कितना करोड़ रुपया क्षेत्र से आ रहा था, अनाउंसमेंट हो गया था। अब देखिए काली पहाड़ी में सिर्फ बड़ा एक दीवार बना के उसके पीछे कचरा फेंक के रख दिया है, कुछ नहीं हो रहा है, और उसके सामने भी वही हालत है। तो ये सारे सच्चाई खुद मेयर जब चिट्ठी लिख के और मीडिया में सारी चीज़ बोल दिया, तो मैं जब बोल रहा था वो राजनीतिक आरोप लगता था, क्योंकि ये लोग झूठ बोलते थे, इधर उधर की बातें करते थे। आज सारी सच्चाई सामने आ गई, तो मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद दूंगा। बाकी वो दीदी के साथ हैं, उनको रहने दीजिए। हम दादा के लिए, नरेंद्र मोदी साहब के लिए काम कर रहे, स्वच्छ अच्छा सरकार पश्चिम बंगाल में गठन करना चाहते हैं, उसी लक्ष्य में हम काम कर रहे हैं। हमें हमारा काम करने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खाता धारकों ने गंभीर आरोप लगाते हुए मैच्योरिटी का पैसा देने में देरी करना तथा काम के बदले नकदी पैसा मांगने का आरोप लगाया। 60,000 रुपए मैच्योरिटी के
पैसे पे 50,000 लेने को कहा जा रहा है और काफ़ी कागजी कार्रवाई करना पड़ेगा ये भी कहा जा रहा है, जिससे वहां उपस्थित लोगों में नाराज़गी पाई गई। अमन शाह की खास खबर, खास बात इंडिया के लिए आसनसोल के बराकर से। तुमको देख लेंगे। যদি আমি যদি চালু করাই পুরানো খাতাকে 200 টাকা ঘুষ খুঁজে নেই, 2 মাস পর আসবে। এরকম হয়েছে আমারই বন্ধ রয়েছে। হ্যাঁ, ও যদি বলবে তখন ফোন করে ডাকিয়ে দিতে পারবে। কি নাম ছিল? বটন মন্ডল। मेरा घर है, यहाँ पर डेली का झमेला होता है। इसके लिए किस चीज़ के लिए बस यही, किसी का बोलता है लिंक नहीं है, लिंक रहने से भी लिंक नहीं है। एजेंट आता है अंदर में काम 2 बजे के बाद काम होता है, सबको भगा देता है, घूस मांगता है, यही काम और क्या। बेगुनिया बाजार जो पोस्ट मास्टर है ना, उनका नाम है अरुण दास। पब्लिक को डेली घुमा रहा है, मैच्योरिटी होने के बाद भी पैसा नहीं मिलता है। खाता में दिखा रहा है आपको, किसी को 60,000 आप पेमेंट बोल रहा है 58 उसका मैसेज में दिखा रहा है। तो बोला कम क्यों? बोला कम आपको लेना है तो तुरंत पेमेंट हो जाएगा, नहीं 60,000 लेना होगा तो आपको वहाँ लिख के भेजना पड़ेगा, हमको कम से कम 1,000 रुपया घूस देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा, तब होगा। तो क्यों पैसा अपना पैसा? क्या नाम है आपको मास्टर का? क्या नाम है उनका? अरुण दास। अरुण दास डेली आपको ऐसे लेट से भी आता है 11 बजे, ठीक है। अब 11 बजे से पहले घुसता नहीं है, लेट से आता है। वो पब्लिक को बोल रहा है गर्दन को मार देगा। अभी देखिए सामने आप लोगों सामने ही बोला, जो उसको थप्पड़ मारेंगे, कस्टमर को बोल रहा है। हाँ, जो सेविंग खाता खुलता है 50 रुपया लेता है, हर चीज़ पैसा। आज शाम को क्या उल्टे वाले कहा होता है, ऐसे बोल रहा लिंक नहीं, पब्लिक को घुमा देता है, लेकिन अंदर में जाकर काम होता है, उल्टे वाला काम होता है, पूरा पैसा काम होता है, ठीक है। तो क्या होता है, गवर्नमेंट का लॉस ही होता है। आज डर से आदमी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पैसा आदमी रखना चाहता है पोस्ट ऑफिस में, लेकिन डर से आता नहीं आदमी। इसका बिहेव से इतना खराब है, ठीक है ना। तो इस पैसा से मान लीजिए सरकार को लॉस हो रहा है कि नहीं बोलिए। अगर पब्लिक अगर नहीं आएगा पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस हम लोग को पूरा भरोसा है जो भाई चलो पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करेगा, काम में देगा। कोई आपको कोई रिटायरमेंट पर्सन उसको भी एमआईसी मिलेगा, लेकिन इसका वजह से सब छोड़ दे रहा है, पोस्ट ऑफिस आना ही छोड़ देता है। तो आप लोगों का क्या मतलब क्या कहना है कि इसको यहाँ पे रखा जाए या नहीं, उनको रख कोई नहीं चाहता, नहीं रहे, लेकिन उसको पहले बार आया अपना पैसा है, पैसा लेकर कहीं पर लगाना है, मेडिसिन खरीदना है, अब कुछ भी मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है सर? महीना हमको हिसाब रख दिया है, पर हमको पैसा नहीं मिल रहा, काहे मिल रहा? मेजाज से बात करता है, अभी बोले मुख फटा देगा। अभी ये क्या बोल रहा? अभी ये क्या बोल रहा? इसका भी पैसा देखिए मैच्योर होगा, मिला बोल 1 हफ्ते से रुका दिया। 1 हफ्ता से हो गया, अगला महीना हो गया, जनवरी 21 तक मैचुरेट हो गई, अभी तक नहीं। और सबको बस पैसा मांगता है। क्या नाम है आपका? अमल कि आप लोग थोड़ा हमको समय दीजिए काम करने का। बात है कि आपका ऊपर में आरोप है कि आपके पास जो भी काम कराने के लिए आता है आप 1000 रुपया मांगते हैं, बोलते लिंक नहीं है, 28 दिन के बाद आइए। देखिए ये सब गलत है। बात है कि जब भी किसी का साथ कोई बातचीत हो जाता है तो अपना पक्ष लेके वो लोग ये सब करता है। इसके लिए तो भी पुलिस है, थाना है, ये सब तो है। बात है 22 तारीख से हम लोग से लिंक एकदम स्लो है। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग हमको थोड़ा टाइम दीजिए। तो ये लोग को दूसरा सोच में आ गया कि हम लोग को काम छोड़ के दूसरा का काम कर रहा है, लेकिन ये बात सही नहीं है। ये रिपोर्ट हम डिविजनल को किए हैं, वो लोग आप भी चेक किया है, वो लोग बोला थोड़ा टाइम लगेगा, काहे कि ये जो प्रॉब्लम हम लोग का है ये कोई मशीनरी प्रॉब्लम है। वो लोग अपना CPC से आके बात करेगा, काम करके ठीक करेगा। हम देखिए यहाँ पर आपको नोटिस है, रिक्वेस्ट किया है कि हमको थोड़ा टाइम दीजिए, काम सबको होगा। और यहाँ पर कोई जो पैसा का जो लेन देन है कुछ नहीं है। आप किसी को भी पब्लिक को आप लेके आइए, देखिएगा किसी को हम आज यहाँ तो सारा पब्लिक जितना भी कस्टमर है और आने जाने वाला जो पब्लिक है वो भी गाड़ी रोक के बोल रहा है कि दादा सिखा के लाया है कि चलिए किसी को बदनाम करना है, हम लोग चेयर में बैठा है तो ये सब करा जाता है। आप लोग को रिक्वेस्ट है जी, आप लोग रिपोर्टर है, आप लोग थोड़ा सही जो कौन चीज़ है उस सही को आप देखिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पब्लिक को हमको काम करने दीजिए। उत्तराखंड में आई बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान हुआ है। विदित हो के रविवार को उत्तराखंड में आई बाढ़ ने चमेली सहित आसपास के विभिन्न इलाकों में तबाही मचाई थी। कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। उन्हीं लोगों की याद में और बाढ़ में तबाह हुए लोगों के लिए
रानीगंज में भाजपा के कद्दावर नेता राजेश मंडल की अगुवाई में स्थानीय हनुमान मंदिर में 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उस मौके पर राजेश मंडल ने कहा कि उत्तराखंड में आई बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है और लोगों की जो जाने गई है उनके साथ खड़े होने के लिए और भगवान से भविष्य में ऐसी तबाही ना हो ये प्रार्थना करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। आसनसोल खास बात में आज के लिए बस इतना ही। मैं आफरीन लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। गोस्वामी जी को मैं सम्मानित कर रहा हूँ। हाँ जरूर, धन्यवाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा बजरंग बली की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर